امریکہ کا ایران پر مختصر اور ہولناک حملے کا منصوبہ، فوجی قیادت آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا ایران کے خلاف ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ امریکی سینٹکام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی۔ اس اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ پہلی بار امریکہ ہائپر سونک میزائل عملی طور پر تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے۔ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ ڈارک ایگل میزائل کی قیمت 4 ارب 18 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ اس نظام کی بیٹری کی لاگت تقریباً 7 کھرب 53 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ ایران سے ڈیل جوہری ہتھیار ختم کرنے پر ہوگی، فون پر بات چیت جاری ہے۔ ایران پہلے شکست تسلیم کرے، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا۔ جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے، ایرانی کرنسی کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران میں اتنی مہنگائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ روسی صدر سے یوکرین اور ایران پر بات ہوئی، پیوٹن بھی نہیں چاہتے ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ امریکی میڈیا کو نشانہ بنانا نہ بھولے، کہا امریکی میڈیا کا کچھ حصہ جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ یورپ نے ایران جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران جنگ کے حوالے سے نئی تصاویر شیئر کر دی، لکھا طوفان آ رہا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ایران اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو قومی طاقت سمجھتا ہے۔ ایرانی عوام ان صلاحیتوں کو ملک کی زمین، پانی اور فضائی سرحدوں کی طرح اہم سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان، کہا اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ آبنائے ہرمز کا نیا انتظامی منصوبہ تمام خلیجی ممالک کے لیے معاشی فوائد لے کر آئے گا۔ تہران خلیجی علاقے کو محفوظ بنائے گا اور دشمنوں کو آبی گزرگاہوں کو ختم کر دے گا۔ حملہ کیا تو ایسا اسلحہ استعمال کریں گے دشمن کانپ جائے گا، ایرانی نیول چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا۔ کہا دشمن بحیرہ عرب سے ہرمز کی جانب تھوڑا بھی بڑھا تو تیز تر رد عمل دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکہ کی بحری ناکہ بندی خلیج میں بدامنی کو مزید بڑھائے گی اور اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف بولے، ٹرمپ انتظامیہ کو وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن فضول مشورے دیتے ہیں۔ تیل کی عالمی قیمت $140 تک پہنچ جائے گی۔ امریکی صدر بحری ناکہ بندی کر کے اقتصادی دباؤ اور اندرونی انتشار پھیلا کر ایران کو جھکانے کا ہدف رکھتے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی، خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح کو چھو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 8% اضافے کے بعد $126 فی بیرل ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل تک جا پہنچی۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی امریکی تیل کمپنیز کے سربراہان سے ملاقات، تیل کے عالمی منڈی پر اثرات کم کرنے پر مشاورت کی گئی۔ امریکی صدر کے بیانات، متحدہ عرب امارات کی اوپیک سے علیحدگی اور خام تیل کی ہوشربا قیمتیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا مسلسل چوتھے روز مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 2829 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، 1,62,994 پوائنٹس پر بند۔ 560 کمپنیز میں سے 348 کی قیمتیں گریں اور 101 میں اضافہ ہوا۔ مشرق وسطی کشیدگی سے گیس بحران، ذرائع کے مطابق وزارت پیٹرولیم نے نئے گیس کنیکشن پر پھر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان سوئی ناردرن کے مطابق پہلے سے موجود صارفین کو بلا تعطل فراہمی کے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سوئی ناردرن کی جانب سے کچھ عرصہ قبل عائد پابندی ختم کی گئی تھی۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کا نام ہی بدل دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نقشہ شائع کر دیا اور اسے آبنائے ٹرمپ سے منسوب کر دیا۔ اس سے قبل بھی ٹرمپ اپنی ایک تقریر کے دوران آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کر چکے۔ اس موقع پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا ابتدا میں اسے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں۔
अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी सदर की जहनी हालत पर सवालात उठ गए। डेमोक्रेट पार्टी की रुकन सारा जैकब्स ने वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ पर एक के बाद एक सवालात की बारिश कर दी। कहा, अमरीकी सदर के रोज़ बदलते बयानात उनकी जहनी काबिलियत पर तमाम अराकीन को शक में मुब्तला कर रहे हैं। मेरे फौजियों की जिंदगियां बहुत कीमती हैं, ऐसे में हमें एक जहनी बीमार क़यादत की ज़रूरत नहीं। पूछा, क्या ट्रंप कमांडर इन चीफ के ओहदे के लिए जहनी तौर पर मुस्तहकिम हैं? अमरीका अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम भेज दिया, जिसमें कहा गया कि वह मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए राग़ब करें। इस नए मुआहिदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कॉन्स्ट्रक्ट रखा गया। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने अहम फरीकों से राब्ता रखा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंजराबी ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब और ईरान की क़यादत से भी राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी की मज़म्मत। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जिराल्ड फोर्ड की मशरक़ वस्ता से वापसी की तैयारी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 10 माह से तैनात तकरीबन 4500 अमरीकी अहलकारों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। बहरी जहाज की वापसी से खित्ते में अमरीकी फौजी ताकत में कमी मुतवक्के। ईरान जंग के दौरान अहम फायर पावर में कमी पर खदशात हैं। बहरी जहाज को तवील तैनाती के बाद मरम्मत की शदीद ज़रूरत है। चीन के शहर सानिया में पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास मेरीन PNS हंगू की कमिश्निंग तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की नई आबदोज का मुआयना किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हंगू क्लास सबमेरीन की शमूलियत पाक बहरिया की जदीदकारी में अहम संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी दिफा की सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आबदोजें समंदरी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी से हायनान के पार्टी सेक्रेटरी फेंग फई और गवर्नर लियाशांग मंग की मुलाकात हुई। इक्तसादी तजारती ताउन को वुसअत देने और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत का कारोबारी इदारों और बरामदी सनती शोबों में रवाबित में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया गया। बंदरगाहों की तरक्की, सी टेक्नोलॉजी और माहीगिरी के शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंक्स के चेक्स तकसीम। 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घर हमारा हदफ है। अपना घर स्कीम पूरे मुल्क के लिए है। स्कीम को कामयाब बनाने में बेहद मेहनत की गई। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल घरों के लिए 321 अरब की फाइनेंसिंग मुख्तस की। चेक लेने वालों में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल हैं। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों से मुतालिक पेशरफ्त। 27 पाकिस्तानी आज वतन वापस रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मज़ीद 30 पाकिस्तानी भी अपनी वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। दीगर पाकिस्तानी भी वापसी के अमल में शामिल होंगे क्योंकि वो विजिट वीज़ा पर थे। युगांडा इमिग्रेशन हुकाम ने माली जुर्माने आयद किए। पाकिस्तानी सिफारतखाना जुर्मानों में नरमी के लिए हुकाम से राब्ते में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। जजेस ट्रांसफ़र के अमल में वजूहात भी नहीं बताई गई। दरख्वास्त में विफाक और जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया है।
वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स का नफाज आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 293 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, सुपर टैक्स का नफाज इनकम टैक्स से आज़ाद और एक अलग टैक्स के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। कानून साजी के जरिए माजी से टैक्स लगाना कानूनी तौर पर जायज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से FBR को सर्कुलर जारी करने की हिदायत दायरे इख्तियार से बाहर है। सुपर टैक्स आम इनकम टैक्स के अलावा है, इसका मुतबादिल नहीं। नॉर्मल पासपोर्ट 21 के बजाय अब 14 दिन में मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। कैश अदायगी ख़त्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। घरों की दहलीज तक पासपोर्ट डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। FBR को जुलाई से अप्रैल के दौरान 700 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ज़राए के मुताबिक अप्रैल में 1029 अरब टैक्स हदफ की निस्बत गुज़िश्ता रोज़ तक 810 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया था। आज की कलेक्शन मिलाकर टैक्स कलेक्शन 925 अरब रुपए से ज़्यादा जमा हो सकी। जुलाई से अप्रैल के दौरान 10,910 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया था। कलेक्शन गुज़िश्ता रोज़ तक 10,100 अरब रुपए रिकॉर्ड हुई थी। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल के दौरान 500 अरब रुपए के रीफंड्स जारी किए गए। सिंध में हर 700 में से एक बच्ची डाउन सिंड्रोम का शिकार है। डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चों की तादाद 1 लाख है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के कई इलाकों में फाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अल सूब शहर का दौरा। रेड लाइन BRT यूनिवर्सिटी रोड के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा, कराची के अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे के एरिया में 23 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार मंसूबा शुरू किया जाएगा। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूल, अस्पताल, सड़कें और ब्रिज बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कच्चे के इलाकों में थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। कच्चा के 65 स्कूल्स की तामीर व बहाली और अपग्रेडेशन भी होगी, जबकि कच्चा में ड्यूटी करने वाले नौजवान और अफसरान के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। तरक्की और खुशहाली कच्चा के हर फर्द का हक है। कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। कच्चा के लोग खुशहाल होंगे और बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, तारिक फजल चौधरी और मलिक अबरार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। मारका के शहीद स्क्वाड्रन लीडर के अहलखाना से मुलाकात की। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में रोबोट कुत्तों की नुमाइश शक्ल मारूफ कंपनीज के सरबराहों की है, जिनमें एलॉन मस्क, किम जोंग उन, मार्क ज़करबर्ग शामिल। रोबोट कुत्तों को बर्लिन म्यूजियम में रखा गया है। और मुल्तान सुल्तान्स बड़े मैच के सुल्तान न बन सके। PSL 11 के पहले एलिमिनेटर में शिकस्त के बाद फाइनल की दौड़ से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मास सदाकत नाकाबिल शिकस्त 64 रन बनाकर मैच के हीरो करार। एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड में कल मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी।